present here for their invaluable contribution. Let's make this day memorable by celebrating not just today, but every day, the power and spirit of women around us. Wishing you all a very happy International Women's Day. Aiming to celebrate women who've made significant impact in their respective fields. Now, I would like to invite Dr. Palki Sharma, consultant recognized for groundbreaking research in the field of dermatology. And happy Women's Day to everyone. I am Dr. Palki Sharma. I am a cosmetic dermatologist and I have my own clinic under the name of PS Body Skin and Hair Clinic in Gandhinagar. So my journey started with, I think it was very basic, like from the beginning I wanted to be a doctor, and the best part here was that, see, as a doctor, it is doctor. There's no male doctor and female doctor. कुछ वैसे actor, actress नहीं होता है. So doctor is a doctor. So in my family also there was never a partiality between a male and a female child. वैसा कुछ वहाँ पे भी नहीं देखा. The second thing was that in a profession also we never saw that there was a disparity between a male and a female. So वो कभी एक feeling आई ही नहीं, खुद से भी कभी नहीं आई that you are a girl and you can't do something. So I think for a period of time, like for at least for 20-25 years, I have not seen that there was any, other than the bodily differentiation, there was any differentiation of mind of being a female. The same thing happened when I got married. I was very clear that I want to have my career and I want to work here. As Shwetima said, there are many who already know about my journey. But yes, as everybody said, prioritize yourself. I would say in the first place, accept yourself the way you are. That's the most important thing for a woman. हम लोग हमेशा अपने आप को ना एक बाउंड्रीज में रखते हैं. मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मेरे चेहरे पे ऐसा हो गया, मेरी बाल वैसे हैं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है जब आप अपने आप में बिलीव करना बंद कर देते हैं. Heartbeat for your humanity और जितने यहाँ डॉक्टर, एंटरप्रेन्योर, टीचर जो भी है, तो मैं सबसे विमेन मैं आती हूँ, आप सब मेरे बच्चों की तरह, तो मैं ये कहूँगी आपको कि वर्क फॉर द सोसाइटी. अगर किसी के पास कोई अनप्रिविलेज कोई वर्कर कोई कुछ भी आता है, उसकी हेल्प करना. ये नहीं करना कि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं तो इससे फीस लूँगी तभी मैं इसका काम करूँगी. सोसाइटी के लिए कुछ करो. मैं तो आप बच्चों को तो यही कह सकती हूँ क्योंकि आप तो मेरे बच्चों की तरह हो. मैं ग्रैंड मदर हूँ, मदर इन लॉ या वो सब कुछ हूँ. आफ्टर रिटायरमेंट आई एंजॉयड माय क्लब एंड वर्क फॉर द ह्यूमैनिटी, वर्क फॉर द सोसाइटी. From Gitanjali Salon, Channi, I'm a makeup artist. So जैसे पल्लवी भी बोल रहे थे कि we should go with the flow. So that's what happened with me. I had zero plans of becoming a makeup artist. कभी सोचा ही नहीं था मैंने. But then when I got married, after 2 months, my father-in-law, he said we had already had a business of salon only, but with some other franchisee. तो मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बोला कि वाई डोंट यू ज्वाइन बिकॉज येस इट इज रिक्वायर्ड. अगर 2 लोग इकट्ठे काम करें, इट इज मोर पावर टू द बिजनेस. तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी ज्वाइन कर लेती हूँ. बट देन व्हेन आई वेंट देयर आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि नहीं यार, मतलब आई कैन डू समथिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूज्ड टू मैनेज देयर एज सिंपल. बट देन जब लगा कि नहीं यार कुछ कमी है, बिकॉज उस टाइम में ना, सो आई गॉट मैरिड इन 2017. उस टाइम पे आई बिलीव मेकअप आर्टिस्ट थे, बट बहुत ज्यादा नहीं थे. तो इसलिए क्या बोलूं? Because everybody did say something or the other that I had in my head already. अपने लिए काम करो. Be yourself. Like look at yourself in the mirror every day. I would say. क्योंकि जब मैं as a cancer warrior अगर बात करूँ, not call myself a survivor, but right now I call myself a warrior. क्योंकि जब मैं कैंसर के बारे में सुनती थी ना, my family, my father has dealt with cancer. I lost my father when I was 4 years old. And then I came here and obviously he got better. But having said that, life एक वो जो है ना कैंसर आपका एक सोशल स्टिग्मा बना देता है. जबकि इट हैज टू रिवर्स कि पहले खुद, क्योंकि हम हैं तो हमसे जुड़ा हर इंसान है. एंड दिस वन रियलाइजेशन आई हैड व्हेन आई वाज ऑन हॉस्पिटल बेड. 25 दिन हो गए थे और मैं हर रोज रोती थी कि मेरा 6 महीने का बच्चा घर पे है. और दैट वाज द मोमेंट आई फेल्ट कि यार क्योंकि मैंने पिछले 2-2.5 साल अपनी हेल्थ इग्नोर की है, दैट इज व्हाई आई एम एट दिस वर्ड. जो मुझे कॉन्टिन्यूसली परेशान भी कर रहा है और सोचने पर मजबूर भी कर रहा है
और ये हम सबकी रियलिटी है। हम एक छोटे बच्चे से अपनी माँ तक देखेंगे ना, लाइक पलकी जी सेड, कंडीशनिंग, वी आर कंडीशन्ड टू कीप आवरसेल्फ at the back and let everybody be a priority. And I think चाहे वो हेल्थ में है, चाहे वो करियर में है, चाहे फैमिली में है, बड़ी बेसिक सी चीज है। माँ अगर बादाम भिगोएगी ना सबके लिए, अपने लिए दूध देगी, फैमिली के हर मेंबर को पिलाएगी, बट कभी खुद नहीं पीती, because she is conditioned like that and somewhere deep down वो हमें inculcate हो चुका है। But maybe because I suffered certain health ailments and then personal professional life बहुत imbalance हो गई, तो इन चीजों पे मेरा ध्यान जाना शुरू हुआ and I started talking about it. इस चीज को मैं चाहती हूँ कि हम सब अपने लिए, like it's actually not easy keeping yourself a priority, but it is very important. हम नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों, but हम नहीं कर पाते. So my message is not for all the women, but it's for every. Wait, sir. Wait, ma'am. Wait. जो आज पहले तो मैं स्टार मैच अलॉन्ग विद फोर्टिस मेमोरियल गुरुग्राम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इन्होंने एक इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे बहुत सारी जो फीमेल्स थी फ्रॉम डिफरेंट जॉनर्स उनको आज फैसिलिटेट किया, सो थैंक यू सो मच। और मेरा एक मैसेज है जो ये रहेगा फॉर ऑल द वुमेन कि हमें कोई एक स्पेशल डे नहीं चाहिए टू सेलिब्रेट वुमेन। आई थिंक हम लोग मेंस डे सेलिब्रेट नहीं करते हैं, सो हमें इक्वालिटी चाहिए, बेसिकली हमें एक बेसिक रिस्पेक्ट चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए एंड वी डोंट नीड अ स्पेशल डे जस्ट टू सेलिब्रेट वुमेन। आई थिंक वुमेन नीड सेलिब्रेशन एवरी सिंगल डे बिकॉज एज फीमेल एज वुमेन वी आर नर्चरर्स। हम लोग सोसाइटी को नर्चर कर रहे हैं, हम लोग जैसे कहते हैं कि बच्चों को जैसे बड़े करना होता है उस तरीके से हम घर बनाते हैं। आजकल हम लोग कॉर्पोरेट्स में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सो वुमेन आर इन एवरी फील्ड, दे आर इन पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग। ऑल वी नीड इज इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड वी नीड सपोर्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द वुमेन कि आप सबसे पहले अपने आप में बिलीव रखिए एंड देन यू नो स्काई इज लिमिट। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, मेरा नाम है श्वेतमा और मेरे साथ हमारे जम्मू की जानी मानी हस्ती कृतिका खन्ना। सबसे पहले तो शुक्रिया कहना चाहेंगे फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम का, जिन्होंने जम्मू में स्टार मेड्स छन्नी में ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया। विमेन फेलिसिटेशन मुझे लगता है बहुत छोटा शब्द हो जाएगा बिकॉज विमेन को सेलिब्रेट करने के लिए जितने भी दिन हो उतने कम होंगे। और आज बहुत अच्छा इंटरेक्शन सेशन रहा, जितने भी अमेजिंग विमेन यहाँ थी जिन्होंने अपनी लाइफ जर्नी शेयर की। कहीं ना कहीं हर किसी की कहानी में एक चीज जरूर सामने आती है कि विमेन, WOMEN, हम अगर बात करते हैं तो एक सशक्त भारत का निर्माण अगर हम करना चाहते हैं, एक ऐसे देश को अगर हम इन्विजन करना चाहते हैं जहां विमेन हेल्दी है, मेंटली, फिजिकली और एम्पावर्ड है, तो उसकी शुरुआत हमारे अपने घरों से होने की जरूरत है। और एक इक्वल एटमॉस्फेयर हर बच्चे को मिलना बहुत जरूरी है और एक अच्छी सोच, कहते हैं ना, अगर हम कुछ शुरुआत होती है हमारे अपने घरों से, तो घरों में एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अपनी बेटियों को संस्कारी तो बनाओ बट उनको बोल्ड बनाओ, पर अपने बेटों को वो संस्कार दो कि उन्हें ये पता हो कि अपने घर की नारी का सम्मान कैसे करना है। सो विमेंस डे मैं हर किसी को बस यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले खुद को रखना सीखो, अपनी सोच को आगे लाना सीखो, क्योंकि आप हो तो आपका संसार है और आपसे ही संसार है, इसलिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।